Hallelujah. For last few weeks we've been discussing from the topic, on faith, right? And it is from Hebrews chapter 11. So I want you all to open your Bibles to Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 में हमने देखा था कि किस प्रकार इतिहास में से from the history how the author of Hebrews he brought some examples for us, a real example of people who lived by faith and who have who have done great things by faith. उसके विषय में हमने देखा था. And from the very beginning we saw, from Abel we saw, from Noah we saw, from Enoch we saw, from Abraham, Sarah, from Isaac, Jacob, Joseph, Moses, इन सब के जीवन से हमने देखा है. And all these people have a lot of things to teach us, a lot of things for us to learn from them. विश्वास क्या होता है, विश्वास में जीने का अर्थ क्या है, परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को हम इनके जीवन से समझ पाए. Hallelujah. And I do believe that the sermons that you have heard in the past few weeks have been a great blessing for you to grow in your faith. और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों को सच में आपके हृदयों में रखेगा, and these words will bring fruit into your lives. You will grow in faith, and that is what we pray. और आज जब हम उस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में आते हैं, when we come to the last portion, in verse 32 through the end of that chapter, verse 32 से लेकर उसके अंत तक जब हम देखते हैं, we will not read the whole scripture all at once, but we will go through it one by one. जब इन्होंने जो हिब्रूज को लिखा था, उन्होंने जब पहले लोगों का नाम लेकर के उन्होंने विश्वास से क्या किया, इस प्रकार बोलते हुए आया, और आखिर में आकर के वो कहता है कि and what more shall I say, और क्या मैं कहूँ, I don't have time to tell more. वो क्या कहता है, मेरे पास और समय नहीं है कि मैं और भी लोगों के बारे में बताता चलूँ. He had a lot of examples to bring from the history, and he is saying that अब मेरे पास इतना समय नहीं है that I would keep on writing about each person, कि उनके जीवन में विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या किया. And he brings few names. I don't have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah and David and Samuel and all the prophets करके. All the names that you just read here, you just saw here, are the people who lived in the country of Israel, right? इज़राइल देश में रहने वाले लोग थे, और इन लोगों के द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए थे. और यहाँ पर लेखक कहता है कि I don't have time to explain all these things इन्होंने जो किया है, but you just go and study. That is what he meant, because हमने शुरुआत में ही देखा था, this letter has been written to the Jewish Christians जो अपनी रीति रिवाज को अच्छे से जानते हैं. The Jews who know about their scriptures, who knew about their history, वो सब जानते हैं. तो जब ये लेखक सिर्फ उनका नाम देता है, they could easily recollect about what all happened in their lives, right? हम जब हमारे देश के इतिहास में कुछ हुआ है, some historical event that happened in our country, जब उसका नाम लेते हैं हम उसको याद कर लेते हैं, right? For example, जालियनवाला बाग, जैसे बोलते हैं हमें तुरंत याद आता है, right? अच्छा, वहाँ पर कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, and the British army man came and they killed a lot of people. When we talked about Dandi March, we know अच्छा वहाँ पर क्या हुआ. Recollecting the history. And for Jewish people, it was very important to remember their history, and every child of a Jewish family was taught about their history. इसलिए जब लेकर कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इन नामों को जब मैं दे रहा हूँ, उसी से हम जान सकते हैं कि उन्होंने क्या 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 किया है. So I just want to briefly go through the people जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, and let us also see what they have done for the Lord and what faith produced in their life. जब हम फर्स्ट गिदियोन के बारे में देखते हैं, right? The first person is Gideon. Judges chapter 6 में उनके बारे में लिखा है. In Judges chapter 6 में उनके बारे में लिखा है, परमेश्वर ने गिदियोन को इस्तेमाल करके मिदियानियट्स को हराया. परमेश्वर ने गिदियोन और उनकी सेना को इस्तेमाल करके एक मिडियान करके जो देशवासी लोग हैं उनको परमेश्वर ने हराया. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गिदियोन की आर्मी में कितने लोग थे? कितने लोग थे? जोर से बोलिएगा. 300 men.
और इसका मतलब है नहीं कि सिर्फ 300 आदमी ही थे। गिदियोन के पास जब परमेश्वर ने आकर के कहा कि आई एम गोइंग टू यूज यू टू टू प्रोटेक्ट माई पीपल, टू डिलीवर माई पीपल, तो गिदियोन तो काफी सारे लोगों को लेकर के आया। ही ब्रॉट पीपल इन थाउजेंड्स। तो परमेश्वर ने कहा मुझे इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें छोटे छोटे टेस्ट करके उन्हें कम कराया, और फाइनली गिदियोन हैड ओनली 300 मैन। सिर्फ 300 पुरुषों के साथ उन्होंने मिदियानियों को हराया और इजरायली लोगों को बचाया। इट वुड हैव नॉट बीन अ ग्रेट विक्ट्री यदि बहुत सारे लोग जाकर के एक देश को हराया होता, राइट? लाइक लाखों में लोग जा रहे हैं और देश को हरा दिया, तो वो तो होता ही है, दैट इज नॉर्मल। बट ओनली 300 मैन स्टूड देयर एंड दे डिफीटेड द होल नेशन। दैट इज व्हाट फेथ कैन डू। परमेश्वर ने गिदियोन के जीवन से उस काम को करके दिखाया। बट यदि आप देखोगे गिदियोन के अंदर भी शक था, राइट? गिदियोन ने युद्ध में जाने से पहले ही गॉट 2 कंफर्मेशंस फ्रॉम गॉड कि परमेश्वर यदि आप सच में मुझे बुला रहे हैं, इफ यू आर द ट्रू गॉड एंड इफ यू आर कॉलिंग मी, ये चिन्ह करके दिखाओ। व्हाट ही डिड, उन्होंने एक स्किन को जमीन के नीचे रखा और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई कम हियर आई शुड सी स्नो अराउंड द स्किन एंड द स्किन शुड बी ड्राई करके। तो परमेश्वर ने वैसे ही करके दिखाया। एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। द नेक्स्ट डे ही सेड वन मोर टेस्ट। अब इस बार सिर्फ स्किन गीला रहना चाहिए, जमीन सूखा रहना चाहिए। परमेश्वर ने उसे भी करके दिखाया। एंड फाइनली वी सॉ दैट थ्रू गिदियोन गॉड डिलीवर्ड इजराइलिट्स। हालेलुया। एंड इफ यू गो टू द नेक्स्ट पर्सन बाराक, उसके बारे में हम जजेस चैप्टर 4 में देख सकते हैं। जजेस चैप्टर 4 वी रीड अबाउट बाराक। और वहां पर एक प्रॉफिट थी डेबोरा करके, हर नेम इज डेबोरा, और उसने वहां पर परमेश्वर की लोगों को न्याय कर रही थी। तो परमेश्वर ने डेबोरा को इस्तेमाल किया टू रीच आउट टू बाराक, और बाराक को बोला कि गॉड इज गोइंग टू यूज यू टू डिलीवर इजराइलिट्स। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है इजराइलियों को बचाने के लिए। और बाराक किसके अगेंस्ट युद्ध करने वाला था? सिसेरा करके एक व्यक्ति। और सिसेरा के पास 900 आयरन चैरियट्स थे। कितना? 900 आयरन चैरियट्स थे। तो बहुत मजबूत आर्मी है। और यहाँ पर बाराक करके एक व्यक्ति को एक महिला अगुवाई करती है परमेश्वर की वचन से कि तू जाएगा और तू उन्हें बचाएगा, इजराइलियों को बचाएगा। और बाराक कहता है कि मैं जा तो जाऊंगा, बट इफ यू कम विथ मी ओनली देन विल आई गो। तो डेबोरा कहती है ओके लेट मी बी विथ यू इन द वॉर। दोनों विश्वास के साथ गए थे और वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। और थर्ड पर्सन का नाम क्या है बताइएगा? हिब्रूज चैप्टर 11:32 में तीसरा व्यक्ति का नाम क्या है? सैमसन। सैमसन के बारे में हम सब जानते हैं, रेड फ्रॉम जजेस चैप्टर 13 थ्रू चैप्टर 16 में हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। हाउ ही बॉर्न, हाउ ही वाज रेज्ड, और उनके सामर्थ कहाँ था, और उन्होंने फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट क्या 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 किया, वो सब हम उस वचन में पढ़ सकते हैं। ही वॉज अ माइटी वॉरियर। परमेश्वर ने उसकी सामर्थ को उसके शरीर के किस अंग में रखा था? बाल में, दैट इज हेयर। परमेश्वर ने कहा कि थ्रू आउट हिज लाइफ ही शुड नेवर शेव हिज हेड। यदि वो अपना बाल को काटेगा देन ही विल लूज हिज स्ट्रेंथ। ही किल्ड अ लायन। He burnt a whole field by catching foxes and firing the tail of the foxes. बहुत सारे फिलिस्तीन्स को उन्होंने मारा। और परमेश्वर की वचन को ना मानते हुए उन्होंने जब पाप में पड़ा था, और उसके बाद भी परमेश्वर की दया जब उसके ऊपर आई, at his last moment also he killed many people. Such a mighty warrior, and he was able to deliver Israelites. और यहाँ पर द ऑथर ऑफ हिब्रू कहते हैं कि ये सब लोग इसे विश्वास के द्वारा कर पा रहे थे। बाय फेथ दे वर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। द फोर्थ पर्सन इज जेफ्ता। जेफ्ता के बारे में कई सारे बातें हैं, कई सारे चीजें हैं जिसको लेकर के लोग डिबेट करते हैं। इसके बारे में हम जजेस 11 में देखते हैं। व्हेन यू रीड इन जजेस 11, वहां पर हम देखते हैं अमोनाइट्स के अगेंस्ट ये युद्ध करता है। एक्चुअली जेफ्ता को कोई पसंद नहीं करता। इनफैक्ट उनके फैमिली वालों ने उसे अपने परिवार से भगा दिया था कि तू अलग जाके रह ले। बट ही इज अ
वेरी गुड गाय इन लीडिंग द आर्मी, एक अच्छा कमांडर था। तो जब इजरायली लोग बंदुआई में थे अमोनाइट्स के अधीन पर, तो इजराइल के कुछ एल्डर्स ने जाकर के जप्ता को कहा कि तुम आकर के हमें मदद करो ताकि हम इस युद्ध को जीत सके करके। और उसने एक कंडीशन रखा कि यदि मैं आपके लिए इस युद्ध को जीतूंगा तो आई शुड बी द लीडर। तो उन लोगों ने भी मान लिया था एंड ही केम। और उन्होंने पहले वार्तालाप वगैरह किया था, और युद्ध जाने से पहले उन्होंने एक प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया, किसी को पता है? Does anyone know the prayer? He prayed that, Lord, if you made me victorious in this war, और जब मैं वापस लौटूंगा मेरे घर से जो भी चीज़ पहली मतलब मेरे सामने से बाहर आएगी उसको मैं आपके लिए बलिदान कर दूंगा करके। And he went there, he won the war, and when he came back, क्या हुआ? उसकी बेटी, वचन में लिखा है कि she was his only daughter, वो बेचारी बाहर आ गई। और इस पर ही डिबेट होता है कि जूइश लोग कहते हैं कि उसने तो बलि नहीं चढ़ाया करके, लेकिन कुछ तरह के लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, उसने सच में अपनी बेटी का बलि चढ़ा दिया करके। दैट इज समथिंग एल्स फॉर अस टू स्टडी। बट इन्होंने भी परमेश्वर की मतलब परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए एक देश को हराया था और इजराइलियों को जीताया था। और उसके बाद आते हैं डेविड। दाऊद कौन था? जोर से बोलेगा, दाऊद कौन था? इजराइल का किंग। राजा बनने से पहले वो कौन था? एक चरवाहा था। अपने पिताजी के बकरों को वो चराता था। एंड when God called him, when God chose him to be the king of Israel, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने देश को किस प्रकार आगे बढ़ाया। He won many wars, और उन्होंने अपने जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इतना गवाही देते हैं कि डेविड इज द मैन हु इज आफ्टर माय हार्ट, मेरे हृदय की गहराई में रहने वाला, मेरे हृदय के नजदीक रहने वाला है करके परमेश्वर डेविड को गवाही देते हैं। उसके जीवन में भी हम बहुत सारे अद्भुत कामों को देख सकते हैं, जिस प्रकार उनको अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा, बट स्टिल ही डिड नॉट किल किंग सॉल इवन व्हेन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त एक व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ नहीं लगाऊंगा। He had complete trust on God, और परमेश्वर को न्याय करने के लिए दिया, and he became the prominent king of Israel। और यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी कई बार लोग दाऊद की पुत्र करके बुलाते थे, and that was the reward that he got for his faith। और उसके बाद लास्ट एक व्यक्ति का नाम आता है, वो कौन है? सैमुअल के बारे में जब हम देखते हैं, छोटी सी उम्र में वो परमेश्वर के मंदिर में रहने वाला एक लड़का था। परमेश्वर के आराधनालय में वो काम करता था। परमेश्वर ने उससे छोटी सी उम्र से बात करना शुरू किया, एंड गॉड स्पोक विथ हिम अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन इजराइल। परमेश्वर ने सैमुअल से बात किया कि इजराइल देश के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ करके। और परमेश्वर ने सैमुअल को इस्तेमाल किया टू अनॉइंट द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल, एंड सैमुअल अनॉइंटेड द सेकंड किंग ऑफ इजराइल ऑल्सो। फर्स्ट किंग कौन था? सॉल, और सेकंड किंग डेविड। इन दोनों को किसने अनॉइंट किया? सैमुअल ने अनॉइंट किया। थ्रूआउट हिज लाइफ ही सर्व्ड फॉर द पीपल ऑफ इजराइल। उनके लिए वो प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा भी बहुत सारे अद्भुत कार्यों को किए थे। ही वॉज द किंग मेकर। एक छोटा सा बालक एक परमेश्वर के मंदिर में रहकर परमेश्वर की सेवा करने वाला एक छोटा लड़का था, लेकिन उसने अपने विश्वास में बढ़ा और परमेश्वर ने उसे राजाओं को अभिषेक करने वाला एक व्यक्ति बना दिया। ये सब लोगों को ये बारे में यदि हम देखते हैं, इनमें एक बात कॉमन है। वो क्या है पता? All these people came at the time when Israelites were going against the Lord. अब जजेस की हर एक चैप्टर का शुरुआत में देखो, मोस्ट ऑफ द चैप्टर वुड स्टार्ट लाइक दिस, कि फिर इजरायलियों ने परमेश्वर की विरोध पाप किया। Again the Israelites went against God, committed sin against God। इसी प्रकार जजेस के पूरे बुक में हम देखते हैं।
जब भी लोग परमेश्वर की विरोध जाके पाप करते हैं, जब भी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है टू प्रोटेक्ट इजराइलाइट्स। क्योंकि परमेश्वर क्रोध में इन्हें क्या कर देता है, He would send them to captivity, या किसी और देश आकर के इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, इनको दबाते हैं, और जब ये लोग दोबारा मन फिराते हैं, दोबारा अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाते हैं, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को लेकर के जाता है। God brings a person to deliver Israelites again. This was happening again and again. जब लोग परमेश्वर के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ साल के लिए ठीक रहते हैं, कुछ साल के लिए बिल्कुल परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, लेकिन दोबारा वो पाप में गिर जाते हैं। दोबारा परमेश्वर उन्हें किसी लोगों के अधीन कर देता है, दोबारा वो परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, दोबारा परमेश्वर उन्हें किसी व्यक्ति को भेजता है उन्हें बचाने के लिए। This was happening all over again and again and again. इसलिए मैंने इस प्रकार लिखा है, when an unfaithful generation lived a life of their own, God raised some faithful men and women who obeyed God in saving the generation. Hallelujah. जब एक पीढ़ी ऐसे अविश्वास में बढ़ चुकी थी, लोग परमेश्वर से दूर जा चुके थे, तो परमेश्वर विश्वास योग्य एक व्यक्ति को चुनता है, विश्वास योग्य एक स्त्री को चुनता है, और उसके द्वारा परमेश्वर उनको छुड़ाता है, और उनके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। इट इज बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ये होता जा रहा था, इज़राइल के अंदर ये चीज हो ही रहा था कि जब भी लोग परमेश्वर की विरुद्ध पाप करते हैं, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है जो विश्वास में है। एंड दैट इज व्हाट फेथ विल डू इन आवर लाइफ, माय डियर चर्च। यदि आज हम देखते हैं, वी आर ऑल्सो इन द जनरेशन विच इज अनफेथफुल। आज हम देखते हैं, हम भी ऐसे एक पीढ़ी में जी रहे हैं, ऐसे एक समय पर जी रहे हैं जहां पर अविश्वास है, लोग परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे हैं, जो लोग अपने मन मर्जी कर रहे हैं, लोगों के अंदर डर नहीं, लोगों के अंदर भय नहीं, लोगों के अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं। तो परमेश्वर किसको चुनेगा? अभी लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर किसको चुनेगा? उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए। आइज़ाया में हम देखते हैं, परमेश्वर बुलाता है, कौन जाएगा मेरे लिए? Who will go for me? Who will go to stand at the gates and pray for my people? We are living at a time where unfaithfulness is increasing, my dear church. अविश्वासी तब बढ़ते जा रहा, लोग परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं, लोग परमेश्वर के बारे में सोच नहीं रख रहे हैं, अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने के लिए? Are we ready to be sent by the Lord? Are we ready to go and to proclaim about God? और यही इन लोगों ने किया। You know, to stand against a nation that is filled with sin, और उनको कहना कि तुम सब पाप कर रहे हो, परमेश्वर का क्रोध तुम पर है, वो कहना मुश्किल है। But they did that because they had faith on Lord. जब सैमुअल ने राजा करके शाऊल को अभिषेक किया था, और उसके बाद शाऊल ने जब सैमुअल की बात नहीं माना, सैमुअल शाऊल के सामने खड़े होकर के बोला, obedience is better than sacrifice. By faith they were able to, otherwise राजा के सामने कोई कह नहीं सकता। जब दाऊद ने पाप किया और उस पाप को छुपाने के लिए एक मर्डर किया, तब नेतन करके एक नबी ने जाकर उससे बात किया, तो दाऊद ने उससे मारा नहीं। But even Nathan had the courage to go and point fingers against the king, to say, you are the culprit. अब सोच सकते हैं कि राजमहल में सब लोग बैठे हुए, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, शायद विदेश के कोई मंत्री भी आया होगा राजा को मिलने के लिए, उन सब के सामने नेतन कह रहा है कि तुम ही हो वो खूनी। पाप के बीच में विश्वास के साथ खड़े होकर के अपनी सेवा निभाने वाले लोगों को परमेश्वर आज ढूंढता है। How many of us are ready to hear the word of God and to go and declare it? गिदियोन के बारे में देखो, गिदियोन क्या कर रहा था? जब पूरे देश मिडियानिट से डरे हुए थे, ये चुप चुप कर अपना फसल काट रहा था और अपना हार्वेस्ट को बटोर रहा था। He had faith. आज परमेश्वर हमें देखता है। Do we have such faith? Do we have such courage in the Lord to stand against sin? इजरायली तो वैसे भी प्रभु के द्वारा चुनी हुई एक देश थी,
और उसके अंदर इतना पाप है। और आज हम जब हमारे देश को देखते हैं, हमारे आपस में देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में जब हम देखते हैं कितना पाप फैला हुआ है। Who is going to stand by faith? Who is going to do the work of the Lord by faith? हमें करना है। और इसलिए लास्ट वीक भी मैंने वही बताया था कि God is using church as an instrument to heal the country. परमेश्वर हमारे कलीसियाओं को इस्तेमाल करता है देश को बचाने के लिए, देश को सुधारने के लिए। लेकिन कलीसिया के लोगों को क्या करना है? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हमें पहले विश्वास में बढ़ना है, हमें पहले परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है, ताकि जब परमेश्वर से हमारे लिए कोई सेवा आए तो हम भी खड़े होकर के बता सकेंगे, हम भी खड़े होकर के लोगों को प्रभु तक पहुंचा सकेंगे। माय डियर चर्च, दिस इज व्हाट वी हैव बीन कॉल्ड फॉर। इसी के लिए हमें बुलाया गया है। बट क्या हम इसे कर पा रहे हैं? हम जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ कहीं हम जाते हैं, जिससे भी हम मुलाकात करते हैं, क्या हम परमेश्वर की विश्वास हमारे अंदर है, इस बात को उन तक पहुँचा पा रहे हैं? We need to make sure this. We need to make sure that we show ourselves as believers of Christ. Last week बांग्लादेश के अंदर एकदम से फ्लड आ गया था. You must have read in the news. पूरा बहुत सारे जगह पानी से भर चुका है. बट उसके बीच में भी एक कम्युनिटी के लोग यहाँ तक के पानी में खड़े होकर के वर्शिप कर रहे हैं. They are not believers, they are not Christians. They believe in some other thing. बट उनके अंदर इतना विश्वास है और इतना डेडिकेशन है, लिटरली इतनी पानी है और उसमें खड़े होकर के वो लोग वर्शिप कर रहे हैं. Where is our faith? हमें विश्वास में खड़े होने का समय है. जब एक अनफेथफुल जनरेशन खड़ा होता है, परमेश्वर एक फेथफुल व्यक्ति को भी इस्तेमाल करके उन्हें बदल सकता है. हालेलुया. और वचन में आगे जब हम देखते हैं, वर्स 33 में लिखा है, वो थ्रू फेथ conquered kingdoms, administered justice and gained what was promised, who shut the mouth of lions, quenched the fury of the flames and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength and who became powerful in the battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised from life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed into two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy for them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. ये लोगों का जिंदगी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि how they lived their life. The people who lived in faith did not have an easy life. जो लोग विश्वास में जीवन जी रहे थे, वो एक आसान का एक जीवन नहीं जी रहे थे. They didn't have everything, given to them in a platter. उन्हें मुश्किलों को सामना करना पड़ा. यहाँ पर क्या क्या लिखा आप देखो, थोड़ा सा आप वर्णन करके देखोगे, यदि आप उसको थोड़ा सा अपने सोच में ला करके देखोगे, it would be very horrific even to imagine that. वचन में लिखा है कि they were sawed into two. आप समझ रहे हैं? मतलब I wanted to put few pictures but again I thought no, I don't want to trigger anyone. आप समझ रहे हैं? Sawing a person into two. आपने वो बड़े बड़े टिम्बर्स को सॉ करते हुए तो देखा होगा. लिटरली लोगों को ऐसे करते थे, उन्हें उल्टा बांध के रखते थे और उनके शरीर को दो भाग करते थे. Why? Because they had faith. They were believing in the Lord. और लिखा है कि they were killed by sword. जॉन द बैप्टिस्ट की कहानी भी हम जानते हैं, राइट? He was put to jail और एक लड़की ने मांगा कि as a reward I want his head. तो राजा ने क्या किया? सैनिक को आदेश दिया. He cut the head of John the Baptist. This is what happened to the people who lived by faith. My dear church, it is very important for us to understand that living a life filled with faith is not easy. कभी भी वो आसान नहीं है, वो कभी भी easy नहीं है. It's not going to be easy at all. क्योंकि विश्वास
हमें इम्पॉसिबिलिटीज की ओर बढ़ाता है हमें, राइट? अनसीन चीजों की ओर हमें लेकर के जाता है. दैट इज व्हाट रिटन इन वर्स 1, राइट? The confidence that we have on things which are unseen. It's very difficult. लोग हमें समझेंगे नहीं, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारे विरोध करेंगे, लोग हमारे ऊपर प्लान्स बनाएंगे, हमारे ऊपर बहुत सारे गलत योजनाएं बनाएंगे. But we are called to stand firm in our faith. Like हमने शुरुआत के sermons में हमने सुना था, these Jewish Christians who recently came to Christ from their Jewish traditions were going through a lot of persecution. बहुत सारे सताव के और होकर के जा रहे थे. इसलिए ये जो बुक को जो लिख रहा है वो इन सब चीज़ों को बता करके उन्हें एनकरेज कर रहा है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये तो पहले से हो रहा है. People have been stoned to death. It's not something new which is happening. ये तो पहले से हो रही है. आजकल जब हम लोगों को देखते हैं विश्वास के बारे में बात करते ही, विश्वास करो आपके जीवन सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा करके कहते हैं. Everything will be smooth for you, everything will be happening for you, everything will be happy for you. हाँ, हम उस बात पर भी विश्वास करते हैं. जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारी हर चीज़ों का ध्यान रखिएगा. That is for sure. But are we also ready to face the outrage? क्या हम तैयार हैं विश्वास के कारण लोगों से नफरत प्राप्त करने के लिए? क्या हम तैयार हैं विश्वास के कारण लोगों से हेट प्राप्त करने के लिए? Are we ready? शायद इस प्रकार की फिजिकल परसिक्यूशन से होकर के हम नहीं गुजरेंगे, बट व्हाट अबाउट दोस मेंटल स्ट्रेस? व्हाट अबाउट दोस वर्ड्स दैट पीपल विल स्पीक अगेंस्ट अस? आर वी रेडी टू हियर दोस वर्ड्स? आर वी रेडी टू स्टैंड फॉर क्राइस्ट इवन व्हेन पीपल आर स्पीकिंग इल अगेंस्ट अस? As a church, that is what we are called to do, my dear church. एक कलीसिया होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, विश्वास में बढ़ने का अर्थ क्या है? Regardless of all these things, ये सब होने के बावजूद भी, यदि ये सब मेरे साथ होगा तो भी मैं क्या करूँगा? विश्वास में बना रहूँगा, मैं विश्वास में मजबूत रहूँगा, मैं विश्वास से कभी पीछे नहीं हटूँगा. हालेलुया. शायद ये सुनने के लिए इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा. पास्टर जी आप ऐसे बात करो ना, विश्वास करो तो आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, विश्वास करो तो आप अमीर हो जाओगे, ये सब बात करो. वचन क्या कह रहा है? By faith they had to go through all these things. विश्वास के द्वारा, विश्वास के कारण और विश्वास के द्वारा उन लोगों ने ये सब सहा करके लिखा. एक लिखा देखो, and I was really put back when I read this. लिखा है verse 35 में, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. कहने का मतलब क्या है? उनके सामने एक ऑप्शन था कि प्रभु को इनकार करो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें रिलीज कर देंगे. तो उन्होंने क्या कहा? हम प्रभु को कभी त्यागेंगे नहीं. We will never give up our Lord. We have a better resurrection. We have something even more better for us than this earth. और उसके लिए हम तैयार हैं. एक अच्छा उदाहरण हम डैनियल की किताब से देख सकते हैं. The three friends, शाद्रक, मेशक एंड अबेदनेगो, how they stood for their faith. उन्होंने कहा कि हे किंग, we believe that our Lord is able to deliver us from this fire, and even if he did not deliver us, make sure that we will not bow before your idol. उन्होंने सोच लिया था कि यदि हमारे परमेश्वर हमें बचाएगा नहीं तो भी हम तुम्हारी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे. Because they know that God is true and God will indeed save them. हमारा विश्वास कहाँ है? कितने सारे लोगों को बंदीगृह में रखा हुआ था. How many of them were put in jail? When Peter के बारे में हम देखते हैं, पॉल के बारे में हम देखते हैं, most of the apostles जो यीशु मसीह के साथ थे, उनके साथ जो जो हुआ है हम जानते हैं. How cruel it must have been for them. They were with Jesus. They lived with Jesus. They saw the miraculous work that Jesus has done. और उसके बाद जब उनका समय आया विश्वास में खड़े होने के लिए, they stood and they endured everything. इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, by faith they achieved great things for God.
विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ हासिल किया. They achieved great things for God, and also by faith they endured suffering for God. उसमें भी उन्हें विश्वास ही मदद किया. जब चाइना देश में कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था, जब जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जब सरकार बनी थी, उन लोगों ने क्रिश्चियंस को बहुत टारगेट किया, उन लोगों को बहुत सताया. कई सारे मिशनरियों को जेल में रखा गया था, बट दे कुड नॉट ब्रेक देयर फेथ. उनका विश्वास को वो तोड़ नहीं पाए. चाइना में आज भी बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जो सीक्रेट चर्चेस कहलाया जाता है. They meet in undergrounds, they meet secretly, they don't even sing out loud. जोर से गाना भी नहीं गाते हैं ताकि किसी और को पता ना चले. They somehow get to manage, to come together to have fellowship. और आप लोगों ने शायद उन वीडियोस को देखा होगा कि उनके हाथ में जब पहली बार बाइबल मिला था, तो how happy were they just to have Bible in their hands because they were longing for it. विश्वास में उन्होंने इतना दुख सहा परमेश्वर के लिए. ये तो बाइबल की कहानी है. यदि बाइबल के बाद यदि हम हमारे इतिहास में देखते हैं, कितने सारे लोगों को हम देख सकते हैं जिन्होंने विश्वास से परमेश्वर के काम बहुत कुछ किया. We can see in both aspects, okay? By faith they achieved great things for God, and also by faith they suffered a lot for God. दोनों हैं. विश्वास से उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर दिया, और विश्वास से ही उन्होंने परमेश्वर के नाम से दुख भी उठाया. पिछले साल लगभग 1.5 साल पहले हम लोग उदयपुर गए थे, और संडे को हम एक चर्च अटेंड करने गए थे. We were so surprised to see such a huge church there. More than 800 people were there, and we were because the whole area is filled with lot of palaces and temple stuff like that, and we really didn't believe कि उदयपुर के अंदर ऐसा एक church है. And after the service we got to meet the pastor of the church, और उन्होंने उनके घर हमें लेकर गए थे to have lunch, and उन्होंने अपना कहानी बताया, and such a great story. उसके पिताजी 1967 में केरल से राजस्थान आए थे. उनके हाथ में कितना रुपया था बता? Somebody gave him 100 rupees as an offering, and in those days even 100 rupees is a huge amount. और उसी 100 रुपया से उन्हें ट्रेन टिकट भी लेना था, and he reached here and he started praying for Udaipur. He had no connections and obviously no language also. He came here as a single person. He started doing the ministry here, और आज उनके द्वारा कई सारे चर्चेस हैं. विश्वास से वो एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर यहाँ आया, और सच में बहुत आश्चर्यचकित बात यही था, उनके घर पर वो जो फर्स्ट जो टिकट लेकर के आए थे, वो टिकट आज भी फ्रेम करके उसने रखा है. Because he knew that by faith he is going to achieve something great for God. और उसको वो टेस्टिमनी के रूप में उन्होंने उसको फ्रेम करके रखा है. He is no more, he is with the Lord now. But उनका बेटा अभी बहुत अच्छा मिनिस्ट्री कर रहा है. They release lot of good songs actually. आप YouTube में चेक कर सकते हैं. Such a beautiful church, such a vibrant church. शुरुआत कहाँ से हुई? एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर नॉर्थ इंडिया की तरफ आया. हाथ में बहुत कुछ नहीं था, बहुत सारे टैलेंट नहीं थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ अपना पहला कदम रखा. परमेश्वर बाकी चीज़ों को देख ले. वी ऑल नो अबाउट D.L. Moody, राइट? D.L. Moody के बारे में हम जानते हैं, राइट? अनपढ़ आदमी है. He had neither good school education nor a theological education. लेकिन लोग कहते हैं कि he was about 67 years old when he died. वो मरने के समय तक दिन में 6 बार प्रीच करता था. Most of the days. दिन में 6 बार प्रीच करना. Can you imagine? वो चाहे छोटा सा एक संगति हो या बड़ी भीड़ हो, वो खड़े होकर के परमेश्वर की वचन का प्रचार करता था. बहुत तेज बोलने वाला व्यक्ति था वो. एक बार एक मीटिंग खत्म करके, बहुत छोटा सा एक मीटिंग था, मीटिंग खत्म करके वो वापस लौट रहा था, तो एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, अरे मोदी जी, आज तो यू प्रीच, हाउ मेनी पीपल एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट करके. तो मोदी ने बताया कि 2.5 people believed in Jesus today करके.
तो ढाई लोग ऐसे कैसे? देन ही थॉट अच्छा मे बी 2 बड़े लोग और एक छोटा बच्चा होगा, इसलिए इन्होंने ऐसे बता रहा। तो डीएल मोडी ने कहा नो 2 छोटे बच्चे थे और एक बड़ा व्यक्ति था, और उसने उसका रीजन बताया था कि बड़ा व्यक्ति की आधा उम्र तो अभी निकल चुका है, इसलिए वो आधा व्यक्ति है, लेकिन छोटे बच्चों के पास अभी पूरा जीवन है प्रभु में जीने के लिए करके। हालेलुया। विश्वास के साथ लोगों ने क्या 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 किया है। विलियम कैरी के बारे में आप सोचो। He came to our country, translated the Bible in many languages. कितना मुश्किलों को उन्हें सहना पड़ा। उसकी पत्नी पागल हो चुकी थी, उनके बच्चे मरे थे। He still stood there. He did the work. विश्वास से। और उसने ये कहा ना कि expect great things from God and achieve great things for God. दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Expect great things from God and achieve great things for God. मतलब क्या है? परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा ना रखो, और साथ साथ आप भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो। कैसे कर पाएंगे? विश्वास होगा तभी हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए माय डियर चर्च, विश्वास बहुत जरूरी है। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दोस वर्स। वर्स 39 में लिखा है दे वर ऑल कमेंडेड फॉर देयर फेथ। मतलब उन सब की विश्वास के लिए उन्हें शाबाशी मिली। एट नन ऑफ देम रिसीव्ड व्हाट दे हैड बीन प्रॉमिस्ड। लेकिन किसी को जिस बात की प्रॉमिस उनको दी गई थी वो उन्हें नहीं मिला। मतलब उन्होंने अपने जीवन भर प्रयत्न किया, जीवन भर मेहनत की, लेकिन उन्होंने उस प्रॉमिस को देख नहीं पाए। और ये कौन सी प्रॉमिस की बात हो रही है बता? और उसी चैप्टर 11 का वर्स 10 में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है ना कि दे ऑल वेर वेटिंग फॉर अ सिटी विद फाउंडेशन, जिसको रचने वाला और बनाने वाला कौन है? बताइए कौन है? परमेश्वर। गॉड हिमसेल्फ इज द बिल्डर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द सिटी। लोग सब उन चीज के लिए और 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है इवन एंजल्स वे लॉन्गिंग टू सी दैट करके। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। अबाउट द सैल्वेशन, अबाउट इटर्नल लाइफ, अबाउट हेवन, ये सब लोग अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उनको इस धरती पे होते हुए वो नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली हमें भी नहीं मिलेगा। To receive the greater blessing, we must stand in front of the Lord. और वहीं पर वो पूरा होगा। इसलिए वर्स 14 में लिखा है since God has planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. यानी जब हम भी उनके साथ परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम सब सिद्ध किए जाएंगे। हालेलुया। अब उम्मीद कर सकते हैं कि जब परमेश्वर रिवॉर्ड देगा, हमारे साथ शायद दाऊद राजा भी खड़ा होगा, हमारे साथ सैमुअल भी खड़े होंगे, and we all are going to made perfect together in the presence of the Lord. Hallelujah. And that is what our faith, my dear church. यही हमारा विश्वास है। These people who lived by faith could not see what was promised for them, but together with faith with us they would be made perfect. Hallelujah. लास्ट बात है, then what should we do now? अब हमें क्या करना है? We have to go chapter 12 for that. अध्याय 12 में हमें जाना चाहिए। chapter 12 का first 3 verses लिखा है therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will be not grow weary and lose heart. Hallelujah. अब आपको समझ में आ रहा कि चैप्टर 11 में इतने सारे लोगों की उदाहरण ये क्यों दे रहे हैं?
इज शोइंग कि सबके लाइफ में कितने डिफिकल्टीज थी, बट फिर भी उन लोगों ने विश्वास के लिए कैसे खड़े रहे और विश्वास से परमेश्वर के लिए कितना कुछ हासिल किए थे। ये सब कहने के बाद वो एक एप्लीकेशन लेकर आता है, उसमें हम शामिल हैं। एप्लीकेशन क्या है? थ्रो अवे एवरीथिंग दैट हिंडर्स अस। जो भी हमारे लिए रुकावट का कारण बनता है उसे हमें क्या करना होगा? निकाल कर फेंकना होगा। आपको पता है ना, बाइबल में ऐसे वर्स करके तो किसी ने नहीं लिखा, लाइक चैप्टर 11 चैप्टर 12 ऐसे करके नहीं, इट्स अ होल पैराग्राफ, बट फॉर अस टू फाइंड आउट एंड टू रीड इजीली इसे उन्होंने डिवाइड किया है। सो जब चैप्टर 11 का वर्स 40 में लिखा है कि थ्रू एज दे वुड बी मेड परफेक्ट, और उसके बाद तुरंत ये बताया जा रहा है कि तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है पाप से। थ्रो अवे एवरीथिंग दैट हिंडर्स अस। उन सब चीजों को हमें फेंक देनी है जो हमारे लिए एक रुकावट का कारण बनता है। और आगे लिखता है, एंड द सिन दैट सो इजीली एंटेंगल्स अस। एंटेंगल्स का मतलब समझना, फंसा देता हमें इजीली, एक रस्सी की तरह। यदि वो जमीन के नीचे पड़ा है, हम ध्यान से नहीं जाएंगे, हमारे पैरों में वो फंस जाएगा, हमें गिरा देगा। पाप यही करता है। तो लेकर कहता है, बी माइंडफुल, उन सब चीजों को फेंक दो जो आपको रोकती है, और पाप से संभाल कर रहो, क्योंकि वो तुम्हें फंसा देगा। और दूसरी बात क्या करना है? बस आगे लिखा, रन द रेस, रन विथ परसिवियरेंस, धीरज के साथ दौड़ना है। अब मतलब अभी कल्पना करिएगा कि आप एक दौड़ में हो, आप एक रेस में हो, और बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रैप्स हैं जिससे आपको बचना है, जिससे आपको अपने आप को बचा करके उस रेस में दौड़ना है, और आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। इसलिए वो कहता है वचन 2 में, फिक्सिंग आवर आईज ऑन हुम, किस पर हमारी नजर रखनी है? यीशु मसीह पर। हालेलुया। When we fix our eyes on Jesus, when we fix our thoughts on Jesus, we will be free from all these entanglements जो हमें गिराने की कोशिश करती है। But the moment we take off our eyes from Jesus, the moment our attention goes away from Jesus, ये सब चीज हमें गिरा सकती है। हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें क्या करना है? पहले अपने आप को पाप से बचाना है। जो चीज हमें पाप करने के लिए मजबूत करती है उसे थ्रो करना है। मतलब इमेजिन लाइक थ्रोइंग इट अवे, वो मेरे पास में भी ना हो, उसे मैं दूर कर देता हूं करके करना है, और दौड़ में लगे रहना है, धीरज के साथ दौड़ना है। किसी ने इस प्रकार कहा कि द रेस दैट अ क्रिश्चियन रन्स इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट। एक छोटा सा रेस नहीं कि एकदम तेज से भागकर मैंने खत्म कर लिया, नहीं, इट्स अ मैराथन। और किसी ने इस प्रकार भी कहा है कि इट्स अ मैराथन वेल वी कैरी अ लॉट ऑफ बर्डन्स ऑन आवरसेल्व्स। मैराथन मतलब कई सारे किलोमीटर हमें भागने हैं, लेकिन हमारे ऊपर बोझ भी है, हमारे ऊपर बहुत सारे बोझ है जिसको लेकर के हमें भागना है। जीसस ने वही कहा कि कैरी माई क्रॉस एंड फॉलो मी। उस क्रूज को उठाते हुए हमें भागना है। गॉड इज गोइंग टू हेल्प अस, लेट अस जस्ट फिक्स आवर आईज ऑन क्राइस्ट। और उन्होंने उस दौड़ को पूरा करके दिखाया करके यहाँ पर आगे लिखा है, राइट, फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस द पायनियर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, जिसने हमारे विश्वास की आरंभ किया और उसे सिद्धता से पूरा करने वाला, उसके ऊपर हम अपनी नजर को रखेंगे। फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम ही एंड्योर्ड द क्रॉस। उस आनंद के लिए, वो क्या आनंद? हम सब बचाए जाए, वो परमेश्वर के लिए एक आनंद है। उस आनंद के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस सारे दुख उठाने के लिए अनुमति दी। वही लिखा है ना, फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. लेकर कहता है कि Jesus had finished the race, and by fixing your eyes on Jesus, you can also finish the race. Hallelujah. Let us all stand in God's presence, my dear church.